Thank you, sir, for those warm words. Ladies and gentlemen, various ministries and departments of the central government and state governments have made concerted efforts for ushering development in the Northeast region and bring it at par with the rest of the country. We will now have the dedication, inauguration and laying of foundation stones of a few projects. मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा इन सभी परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करें. Firstly, we will have the dedication to the nation of the 4G mobile towers in Meghalaya. We will now have the inauguration of the new infrastructure of the IIM Shillong. We will now have the inauguration of the Shillong Dangpaso Road funded by the World Bank. We will now have the inauguration of the small laboratory at Mushroom Development Center located at Upper Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya. This project is supported by the Ministry of Agriculture, Government of India and the NEC Ministry of Donor. Next we have the Integrated Beekeeping Development Center located at Samrak, North Garo Hills District, Meghalaya and funded by the Ministry of Tribal Affairs. Next, we have the foundation stone of the Shillong Technology Park, Phase 2, located at New Shillong and funded by the Government of Meghalaya. Next, we have the foundation stone for the Integrated Hospitality and Convention Center at Tripura, Meghalaya, to be constructed with funding from the New Development Bank. Next, we have the 4 road projects funded by the Northeastern Council under the Northeast Road Sector Development Scheme. These roads are located in Meghalaya, Manipur and Arunachal Pradesh. And finally, the foundation stone for 6 road projects funded by the Ministry of Donor through NEC. The roads will be located in the states of Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram and Tripura. देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष प्रस्तुत है आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित और उद्घाटन किए गए परियोजनाओं में से 4 परियोजनाओं के ऊपर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति.
NEC is ensuring smooth connectivity of roads in the region through maintenance and addition of newer roads such as Mukro Omspar linking Jirikinting Road in Meghalaya. This 15.5 kilometer road connects the East Jaintia Hills district in Meghalaya and West Karbi Anglong district in Assam, resulting in boosting of economic activities in both the districts. 9 mile to Umsain via Killing Pilangata Road in Meghalaya. This new all-weather road will enable villagers to transport their horticulture, forestry and agro-based products with ease to the nearest markets. Rehabilitation and upgradation of Kamjong to Konkan Thana via Pilong in Manipur. The main objective of this 37.3 kilometer long road upgradation is to convert it from existing single lane to intermediate multi-lane road. Margarita Deomali, Arunachal Pradesh. This 15-kilometer long road from Margarita in Assam to Deomali in Arunachal Pradesh will act as a medium for the socio-economic transformation of the nearby villages. All these activities will not only improve transportation services in the region, but will also help in boosting the overall economic prosperity of the nation. Northeast states of India fascinate tourists with their unique natural beauty. Tall mountains, mesmerizing green valleys, waterfalls, lakes, wildlife, and people amaze us beyond our imagination. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, has recognized the infinite possibilities of these states and has given the highest priority to the development of the 8 northeastern states. बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है. The government of India has taken several concrete steps for the development of the northeast states, especially in providing connectivity through rail, road, air and waterways. In addition, mobile and broadband connectivity is being ensured in the entire northeastern region. As an outcome, even the remotest of the villages today in the northeast are now being connected with the rest of the world through internet facility. The vision of Digital India through the National Broadband Mission is being implemented in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura by the Department of Telecommunications. Broadband connectivity is being provided to the people of Northeast through optical fiber cable, mobile towers and satellites. Over 6,000 Gram Panchayats are connected under BharatNet project and 1,787 mobile towers have been commissioned in many uncovered villages. It is proposed to saturate all villages of the Northeast with broadband connectivity by 2025. With the vast infrastructure, digital revolution is taking place in the region. And today, it has become easier for people to access education, health, business and agricultural services. People of far-off and remote villages in the northeast states are now becoming self-reliant, and by sitting in their homes, they are able to access government services just with click of a button. They are taking local products to the global markets. Farmers are now managing their crops better and are able to sell online. Students are accessing online education services. Broadband connectivity is also creating new employment opportunities for the youth. In Meghalaya, the Department of Telecommunications has sanctioned 1,294 crore rupees for setting up 4G mobile towers in all the unconnected villages and national highways. 321 towers have already been commissioned so far, and 891 more towers are planned for completion by December 2023. These 1,212 towers will ensure saturation of 4G mobile services in the entire state of Meghalaya. Because of internet, I can sell this local handicraft online. इंटरनेट ये पढ़ाई के लिए आसान रहता है. रिमोट एरिया में कनेक्टिविटी होने के कारण हम अपने सारे
ऑफिशियल काम अच्छे से कर पा रहे हैं। इंटरनेट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और ऑनलाइन ऑर्डर भी बहुत आते हैं। Nadu bengiyo internet kakam sok siwon yangi bangi tip ya ke jinglong jongka suin bening. इंटरनेट के माध्यम से जॉब अप्लाई, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह जितने ऑनलाइन काम होता है, मैं इसी से पब्लिक का काम करता हूँ और इसी से मेरा रोजी रोटी चल रहा है। Fulfilling the dream of Honorable Prime Minister for the Northeastern region's connectivity, the government and telecom service providers are working relentlessly to bring in 5G services to the Northeast. This journey of development will continue as we pledge to bring smiles to the people of Northeast India. 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रभावशाली, पारदर्शी और गतिशील नेतृत्व के अंतर्गत समूचे देश में राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश की अखंडता एवं एकता को और मजबूत करने के लिए कार्यात्मक या आम बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए भारत भर में रोजगार के बेहतर अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तर पूर्वी परिषद ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के हिंदी अनुभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए पहले चरण में आर्थिक सहायता प्रदान की है। उनमें त्रिपुरा के 6, मिजोरम के 3, असम के 2 और मणिपुर के 10 शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। इस योजना के तहत पुस्तकालयों में आधारभूत ढांचे को विकसित करने के अलावा लोकप्रिय साहित्य उपलब्ध करवाया गया है। Meghalaya celebrates 50 years of statehood. Guided by the strong vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and under the dynamic leadership of Honorable Chief Minister Shri Conrad K. Sangma, Meghalaya has been able to achieve stupendous growth. ये बदलते मेघालय की तस्वीर है। बहनों, मेघालय ने बहुत कुछ हासिल किया। Under Jal Jeevan Mission, Meghalaya is one of the best performing states by providing functional tap water connections to more than 2.7 lakh households. Meghalaya is one of the best states in implementation of National Rural Livelihood Mission. Tourism is a key sector of the state's economy. To attract more tourists, there was a need to create new tourism infrastructure and upgradation of rural roads in the state. अब मैं विनम्र निवेदन करती हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे कृपया आज के इस भव्य सभा को संबोधित करें। मेघालय के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी मिश्रा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अमित भाई शाह, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू जी किशन रेड्डी जी, बीएल वर्मा जी, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम के सभी मुख्यमंत्रीगण और मेघालय के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुबले शिलोंग, नमेंगा, मेघालय प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। ये समृद्धि आपके स्वागत सत्कार में भी
झलकती है। आज एक बार फिर मेघालय के विकास के उत्सव में सहभागी होने का हमें अवसर मिला है। सभी मेघालय के मेरे भाइयों बहनों को कनेक्टिविटी, शिक्षा, कौशल, रोजगार की दर्जनों परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई है। भाइयों और बहनों, ये संयोग ही है कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, तब मैं यहां फुटबॉल के मैदान में ही फुटबॉल प्रेमियों के बीच में हूं। उस तरफ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। मुझे एहसास है कि मैच कतर में हो रहा है, लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। हम सबको मालूम है कि फुटबॉल में अगर कोई खेल भावना के विरुद्ध, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ अगर कोई भी व्यवहार करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया है। भ्रष्टाचार, भेदभाव, भाई भतीजावाद, हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के उसे हटा करके ही रहना है। हमें विकास के कार्यों को ज्यादा रफ्तार देने और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में प्रयासों का अच्छा परिणाम भी नजर आ रहा है। यही नहीं, स्पोर्ट्स को लेकर भी केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। आज नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक, ऐसे 90 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आज शिलोंग से मैं ये कह सकता हूं
कि आज भले ही हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान में विदेशी टीम है उन पर है, लेकिन मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है। इसलिए विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हम भारत में ऐसा ही उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए चीयर करेंगे। भाइयों और बहनों, विकास सिर्फ बजट, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन इन्हीं रिचुअल तक सीमित नहीं है। ये तो साल 2014 से पहले भी होता रहता था। फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, नेताएं माला भी पहन लेते थे, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे। तो फिर आज क्या बदला है? आज जो बदलाव आया है वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, हमारी प्राथमिकताओं में आया है, हमारी कार्य संस्कृति में आया है। बदलाव प्रक्रिया और परिणाम में भी आया है। संकल्प आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। सबका प्रयास से भारत के विकास का है। प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, युवाओं को अधिक अवसर देने की है। कार्य संस्कृति में बदलाव यानी हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथियों, जब हमने केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं बदली, प्रायोरिटी बदली, तो पूरे देश में इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। इस वर्ष देश में 7 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा मेघालय के भाई बहन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहन याद रखना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जबकि 8 वर्ष पहले ये खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। यानी आजादी के 7 दशक बाद भी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे और 8 वर्षों में लगभग 4 गुना क्षमता हमने बढ़ाई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनेक राज्य भी, राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है, विकास की स्पर्धा हो रही है। देश में ये जो बदलाव आया है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी आज ये मेरा नॉर्थ ईस्ट ही है। शिलोंग सहित नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां रेल सेवा से जुड़े, इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। साल 2014 से पहले जहां हर हफ्ते 900 उड़ानें ही संभव हो पाती थी,
आज इनकी संख्या करीब 1900 तक पहुंच गई है। कभी 900 हुआ करती थी, अभी 1900 हुआ कर गई है। आज मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। इससे मेघालय वासियों को सस्ती हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उससे मेघालय की कनेक्टिविटी और सशक्त होने वाली है। पिछले 8 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 8 वर्षों में जितनी ग्रामीण सड़कें मेघालय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है, वह उससे पहले 20 वर्षों में बनी सड़कों से 7 गुना ज्यादा है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य भी इससे बढ़ता है। 2014 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज लगभग 4 गुना बढ़ी है। वहीं मेघालय में ये वृद्धि 5 गुना से अधिक है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाला है। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ आयाम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भाजपा की एनडीए की सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। इस वर्ष ही 3 नई योजनाएं शुरू की गई है, जो या तो सीधे
नॉर्थ ईस्ट के लिए है या फिर उनसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अधिक लाभ होने वाला है। पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सुविधा बढ़ेगी और टूरिज्म का विकास भी होगा। पीएम डिवाइन योजना तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई गति देने वाली है। इस योजना से नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अधिक आसानी से स्वीकृत हो पाएंगे। यहां महिलाओं और युवाओं की आजीविका के साधन विकसित होंगे। पीएम डिवाइन के तहत आने वाले 3-4 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच थी और हम डिवाइन का इरादा लेकर आए हैं। अलग अलग समुदाय हो या फिर अलग अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता न पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे, उनको सुलझाया जा रहा है। साथियों, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। जो गति
हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी आवश्यक है। इससे यहां टूरिज्म भी बढ़ेगा और जो लोग गांव छोड़कर गए हैं वे भी वापस लौटकर आएंगे। साथियों, पिछले साल मुझे वेटिकन सिटी जाने का अवसर मिला, जहां मेरी मुलाकात हिज होलीनेस द पोप से हुई। मैंने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। इस मुलाकात ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हम दोनों ने उन चुनौतियों पर चर्चा की जिनसे आज पूरी मानवता जूझ रही है। एकता और समरसता की भावना से कैसे सबका कल्याण हो सकता है, इस पर एकजुट प्रयासों के लिए सहमति बनी। इसी भाव को हमें सशक्त करना है। साथियों, शांति और विकास की राजनीति का सबसे अधिक लाभ हमारे जनजातीय समाज को हुआ है। आदिवासी समाज की परंपरा, भाषा, भूषा, संस्कृति को बनाए रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए बांस की कटाई पर जो प्रतिबंध था उसे हमने हटा दिया। इससे बांस से जुड़े आदिवासी उत्पादों के निर्माण को बल मिला। वनों से प्राप्त उपज में वैल्यू एडिशन के लिए नॉर्थ ईस्ट में 850 वनधन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं, जिनमें अनेक हमारी माताएं बहनें काम कर रही है। यही नहीं, घर, पानी, बिजली, गैस जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नॉर्थ ईस्ट को सबसे अधिक लाभ हुआ है। बीते वर्षों में मेघालय में 2 लाख घरों तक पहली बार बिजली पहुंची है। गरीबों के लिए लगभग 70,000 घर स्वीकृत हुए हैं। लगभग 3 लाख परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा मिली है। ऐसी सुविधाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में तेज विकास की ये धारा ऐसे ही प्रवाहित होती रहे, इसके लिए आपका आशीर्वाद हमारी ऊर्जा है। अभी कुछ ही दिनों में क्रिसमस का पर्व आ रहा है, ये त्योहार आ रहा है। आप सभी को आज जब मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूं तो इसी धरती से सभी देशवासियों को, सभी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को आने वाले क्रिसमस के त्योहार की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खुबले शिवोन, मितेला। महोदय, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
देवी और सज्जनों, आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किए गए इस ऐतिहासिक समारोह का हम समापन करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। शिलोंग से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि मेघालय के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद वो त्रिपुरा के दौरे पर भी जाएंगे। ऐसे में 2450 करोड़ रुपए की यहां पर इन्होंने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और ये जो लोकार्पण और शिलान्यास जिन परियोजना A very warm welcome to our Honorable Prime Minister to the state of Meghalaya, and especially to this rally for change. It is indeed an honor to have you here, sir, in our midst. I request our state president, Shri Shibon Lingdo, and Dr. Himanta Biswa Sarma to kindly felicitate our Honorable Prime Minister with the Khasi Jimpong and Paila, the Jayantiar India, and the Garo Dome, and a book which is a gift from the BJP Meghalaya Pradesh. The Honorable Prime Minister is now being presented with the Khasi Jimpong, and now he'll be presented with the traditional paila that is worn by the Khasis and the Jaintias. He is now presented with the Garo headgear, the dome. He will now be presented with the Jayantiar India, which is worn by the people of Jayantiar Hills. The attire symbolizes all the three major tribes of the state of Meghalaya.
Thank you. I now would like to call upon our State President of the BJP Meghalaya Pradesh, Shri Shibon Lingdoji, to kindly come forward and deliver his welcome address. From the deep of my heart, I once again welcome our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to the state of Meghalaya. I also welcome the Honorable Minister of State, Donor Jitendra Singh ji. I would like to welcome also Minister of State in charge of tourism, Sri Alphonse ji. I also welcome Minister of Finance, Government of Assam, Sri Himanta Biswa Sarma ji, and all the dignitaries in the dais. Also to you, ladies and gentlemen. Now I would like to give my speech in Khasi. Mentah kesengi kata kesengi, mensa jengkan mau, ya ke state Meghalaya ke Jongi. Kejingwan jong Prime Minister Narendra Modi, ha kene ke state ke Jongi, ha ke sen ke bar. Baru datang mu Prime Minister, bala summit. Ban penut dia kepor na kebenta ke state Meghalaya ke Jongi. Kani karali ngida khot khnang na kebenta ke Jingkala. A rally of change. Namar hakni kistam beladet ke sarkar basencar apa ke state ke Jongi. Ka klem wanra ya ka roy ka par kat kum bade banwanra ka sarkar indi hapo Delhi barki state passenger ke indi hagiwe pat ki state kilaya sakmat haga roy ka par kilayo ya ka jingutoy habara kiliang handre haga state ke Jongi dang bon ki jimtai ba ki pajba ki klem yo kat kum ba ki dei ban yo kumta ke jingwan jong Prime Minister ka plinati ye phi nga banwan ra ke Jingkala kanwan tang la dang i change ke sarkar hagani ke state ke Jongi ka jingkmiliti jong ke NDA hapo kejingelam jong ke BJP kalong banwanra ya ke roy ke par nangai skamba ha kani ke election ke banwan jong ostem ar hajar khatpra kamde isu ke party banela election kidai ki pajba ki banwanra ya ke sarkar ke ba ban ay ke roy ke par na kata katao na khot di Bakijingwan jo pi sakani kerali kalong bapin ay kijing kershan ya kijing posni jong Prime Minister jongi banwanra ya karoy kapar ya ke state Meghalaya ngan penku di kijing keran jonga da kabang ong ba ki palba jo ke Meghalaya kila kwa de kijing kala bar kijing kala kanwan langba ke BJP Kublai Shibun ya ke jinge don lang jopi ba ke jing skap jopi ya ke BJP banwanra ya ke jingla ha ke Meghalaya kublai 6000 go Thank you, sir. I would now like to call upon our State Vice President, Sri David Kati, to felicitate our Honorable Union Minister, Sri Jitendra Singh.
amongst us, Shri K.J. Ormsji, the Honorable Union Minister of Tourism, who is also our election in charge. Sir, I humbly request you to kindly say a few words. The most respected global leader, Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers of the Dais, senior BJP leaders, and my dear friends. I come from God's own country, Kerala, but Meghalaya is truly God's own paradise. I did not think